السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات 201 کی فرسٹ اسائنمنٹ کی بات کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو ایک ضروری معلومات دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح بنانا ہے اور کس طرح سبمٹ کرنا ہے، اس کا کویشچن کیا ہے، اس کے آنسر کیا ہیں، اس کی ہم تھوڑا سا اوور ویو آپ کو دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ ہم نے ایک اسائنمنٹ فائل کھولی ہوئی ہے، اس کو کھولنا کس طرح یہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنا LMS کھولیں گے۔ LMS کے اندر ہم جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہمیں جو اسائنمنٹ کرنی ہے وہ ہمیں شو ہو جائے گی، اور ہمیں اس ٹاپک کے مطابق ہم اسلامیات 202 کر رہے ہیں، تو یہاں پہ میں اس کو چینج کر دیتا ہوں۔ اسلامیات 201 لکھ دیا تھا، لیکن 202 کی یہ اسائنمنٹ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا LMS اوپن ہو رہا ہے۔ اب چونکہ 4th ویک کا بالکل اینڈ ہے، آج 25 نومبر ہے اور فرائیڈے ہے، تو 26 نومبر کو 4th ویک آپ کی کلاسز کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو آلموسٹ 4th ویک میں جا کے آپ کی ایکٹیویٹیز آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو جو بالکل آنی شروع ہو چکی ہیں۔ یہاں اگر ہم اس LMS کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں اسلامیات 201 کی یہاں پہ اسائنمنٹ ایک ہائی لائٹ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ SOC کی ایک اسائنمنٹ شو ہو رہی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ اسائنمنٹ آئی ہوئی ہیں نہیں آئی، کیسے پتہ چلے گا؟ تو سمپل، اب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ جو بٹن ہے نا، اسائنمنٹ GDB کوئز، اس کے اندر جب یہ نمبرنگ شو ہونا شروع ہو جائے، یہاں پہ دیکھیں نا ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ 1 لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، تو یہ جو نمبر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اسائنمنٹ آ چکی ہے۔ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ اناؤنسمنٹ کے اندر بتا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو SOC کی 1 ایک اسائنمنٹ نظر آ رہی ہے۔ تو ہم آج بات کریں گے اسلامیات 202 کی، اور جس کی ڈیٹیل ہم چیک کرتے ہیں اس کے اسائنمنٹ کو کلک کرنے کے بعد۔ اگر آپ موبائل فون کے اوپر، اور اگر آپ ویو کا جو LMS ہے وہ موبائل فون کے اوپر استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے فائل کو کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے LMS کے اندر ہم جائیں گے اور اسائنمنٹ کو جیسے ہم کلک کریں گے تو میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو اسائنمنٹ کا ٹیب ہے اس کو ہم نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد ہم اس کے اسائنمنٹ پورشن کے اندر چلے جائیں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈیو ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ 29 نومبر دی ہوئی ہے۔ آج ہو چکی ہے 25، تو آپ اس کو 29 تک سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس اسٹوڈنٹ نے جمع کروا دی ہوئی ہے، سبمٹ کروا دی ہوئی ہے۔ تو اب آپ اگر آپ لیپ ٹاپ کے اوپر ہیں تو یا آپ موبائل کے اوپر ہیں تو پھر آپ کے موبائل کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ انسٹال ایڈوب ریڈر انسٹال ہونا چاہیے سافٹ ویئر، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس طرح کا ہوتا ہے، آپ موبائل میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کو لیپ ٹاپ کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے، 2 طرح کی فارمیٹ ہوتی ہیں فائلز کی، یا تو وہ PDF میں ہوتی ہیں جو ایڈوب ریڈر میں اوپن ہوتی ہیں، جس طرح یہ فائل ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں اس کی ایکسٹینشن دی ہوتی ہے کہ PDF، یہ اب ورڈ میں اوپن ہو سکتی ہیں، MS ورڈ میں۔ تو آپ کے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں آفس بھی ہونا چاہیے، ایڈوب ریڈر بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم اس فائل کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلامیات 202 کی ہے، اسلامک اسٹڈیز کی اسائنمنٹ، تو اس کا کویشچن کہاں پہ ہے اور فائل کہاں پہ؟ اس کے لیے کیا کریں گے، یہاں پہ اسائنمنٹ فائل کا ایک لنک دیا ہوا ہے، اس کو ہم کلک کر دیں گے سمپل، ٹھیک ہے۔ آپ سے لوکیشن پوچھے گا کہ یہ فائل ہم نے کہاں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈیسک ٹاپ کے اوپر۔ بعض اوقات ڈاؤن لوڈنگ میں ایرر آ جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ یہ جو ایڈریس بار ہے نا، اس کو آپ چیک کریں گے۔ یہاں پہ ایک تو کوئی ایرر آ جاتا ہے، آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ڈاؤن لوڈنگ سے روکتی ہے، یہاں پہ آپ نے اس کو بالکل الاؤ کر دینا ہے۔ یہاں پہ میں نے ساری سیٹنگ، یہ بائی ڈیفالٹ جو بھی ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے آلریڈی، کروم کی طرف سے سیٹ ہے ساری چیزیں، تو یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے۔ فرض کریں اگر کچھ ایرر آتا ہے، فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، تو پھر یہاں پہ بعض اوقات اس کو وہ پاپ اپ بلاکر روکتا ہوتا ہے، اس کو الاؤ کر دیں۔
اور یہ शाज़ व नादर ही कहीं आता है, हो सकता है कि जस्ट 0.01% कहीं पे आए। तो ये फाइल हमने क्लिक की तो ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, और इसके साथ जो एक्सटेंशन बनी है ये देखें PDF बना हुआ है। तो PDF का लोगो है इस तरह का, बिल्कुल इसी तरह का फाइल यहाँ के साथ बना हुआ है। हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो एडोब रीडर में भी आप बराह रास्त ओपन हो जाएगी, क्रोम के अंदर भी हो जाएगी, क्योंकि क्रोम और जो इसका माइक्रोसॉफ्ट एज है उसको फाइल ओपन कर लेता है। तो मोबाइल में आपने जो है वो लाजमी इंस्टॉल करना है एडोब रीडर। वहाँ पे आपकी फ़ाइल ये डाउनलोड हो जाएगी लेकिन ओपन नहीं होगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपनिंग डेट 21 नवंबर थी और जो क्लोजिंग डेट यहाँ पे इसकी 25 है, लेकिन जो एक्सटेंशन दी गई है यहाँ पे तो आपने इस डेट को फॉलो करना है। यहाँ पे उन्होंने इसको 29 कर दिया हुआ, एक्सटेंड कर दी हुई है, तो इसको 29 तक भी जमा करवाया जा सकता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हमने डाउनलोड की थी फाइल, ये हमारी फाइल है, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ठीक है, फाइल 2020 ISL2, ये फाइल की एक्सटेंशन देखें यहाँ पे। अगर मैं लाता हूँ तो उसके ऊपर टाइप जो आता है फाइल का वो एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट्स आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने लाजमी तौर पर एडोब रीडर इंस्टॉल करना है, मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं और फाइल देखते हैं कि फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये फाइल ओपन है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट, ठीक है। और ये असाइनमेंट 1 है स्प्रिंग 2022 की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या है असाइनमेंट के। टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंसेरिटी इन एक्शंस एंड वर्शिप्स। इबादत में और कामों में, एक्शंस में जो इखलास होता है ना, ठीक है, वो यहाँ पे मकसद है इस असाइनमेंट का कि आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, यानी कि आपके कामों में भी, अमाल में भी इखलास हो और आपकी इबादत में भी इखलास हो, दिखावा ना हो किसी तरह का। तो असाइनमेंट क्वेश्चंस यहाँ पे है, ये असाइनमेंट क्वेश्चन। सिंसेरिटी इज द स्पिरिट ऑफ वर्शिप्स, यानी जो अखलास है वो इबादत का रूह है, एंड एक्शंस और कामों का। अल्लाह अलमाइटी एक्सेप्ट ओनली दोज एक्शंस, अल्लाह ताला वही अमाल कबूल करेंगे दैट आर बेस्ड ऑन सिंसेरिटी, जो खलूस के ऊपर, अखलास के ऊपर मबनी होंगे। जैसे कहा जाता है इस्लाम में कि अमलों का दारोमदार नीयत पर है, तो यही बात की गई है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिलीवर्स, बिलीवर्स क्या होता है, जो ईमान लाए हैं, जो डिस्क्राइब बाई अल्लाह, एक बड़ी जो खूबी बताई गई है अहले ईमान की अल्लाह की तरफ से इन होली कुरान, कुरान पाक में, इज़ दैट एक्ट्स ऑफ वर्शिप्स, कि उनकी इबादत, एंड डीड्स आर, और उनके काम, आर ओनली फॉर प्लेयर्स ऑफ अलमाइटी अल्लाह, कि उनके काम और इबादत सब अल्लाह की खुशनुदी के लिए होती हैं। द होली कुरान स्टेट्स, होली कुरान पाक में फरमाया गया है, वामरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। तो अगर मैं इसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ रहा तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो यहाँ पे असल जो मैं आपको बात समझ आ गई होगी। अब वो ये कहता है कि ट्रांसलेशन, एंड दे हैव बीन कमांड्स टू मोर देन दिस, टू वर्शिप अल्लाह ऑफरिंग हिम सिंसियर डिवोशंस, खालिस नीयत के साथ आपने अल्लाह ताला की इबादत करनी है। तो अब यहाँ पे वो जो क्वेश्चंस हैं इसका वो पूछा जा रहा है। इन व्यू ऑफ अबव मेंशन स्टेटमेंट्स यू हैव टू डिस्क्राइब 5 बेस sources by by which we can develop sincerity in our worship। 5 ऐसे तरीके बताने हैं जिससे आप ये साबित कर सकें कि आपके अमाल और आपकी जो इबादत है उसको खालिस किस तरह बनाया जा सकता है, ताकि किसी तरह की दिखावा ना हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर दिखावा होगा इबादत में, कामों में, तो वो ना तो इंसान को दूसरे इंसानों को पसंद आती है चीज़, और अल्लाह ताला को तो बिल्कुल भी नहीं आएगी पसंद दिखावे की चीज़ें। उनको पता है कि अगर किसी को कोई मदद करता है दिखावे की नीयत से, तो फिर ज़ाहिर है किसी को
पसंद नहीं आता, पता तो चल जाता है कि ये सब दिखावे के लिए हैं। बाज़ लोगों की इबादतें दिखावे के लिए, बाज़ लोगों की जो नेकियां हैं बातों के लिए, बाज़ लोगों को काम दिखावे के लिए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि बाज़ ज़रूरतमंदों को जब वो मदद कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, दिखावे के लिए फ़ोटो सेशन बन रहे हैं, सेल्फीज लिए जा रहे हैं और 10 रुपए की 20 रुपए की उनको चीज़ दी जा रही है। तो इस चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है। तो इस तरह आपने सोच समझ के 5 चीज़ें, 5 काम ऐसे लिखने हैं जो यहाँ पे आपको ये साबित करनी है। उसके मुताबिक अपने कंसेप्ट से लिखें, सोच समझ के लिखें। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला खालिस अल्लाह के लिए करें, उसमें दिखावा ना हो। नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो ये कभी ना शो करें कि बस दूसरे देखेंगे वो ये समझेंगे कि ये तो बंदा नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, ये तो बड़ा नेक होगा। लेकिन अगर आपको अपनी नीयत का पता होता है, अगर आप इस नीयत से कर रहे हैं तो आपकी इबादत अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कभी कबूल होने का उसमें बड़े मसले हैं। तो इस तरह आपने 5 काम तरीके ऐसे लिख देने हैं और ये इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। हेडिंग बनाएं और उसकी छोटी छोटी वजाहत करें। एक्सप्लेनेशन शुड नॉट बी मोर देन 4 लाइन्स, यानी ये जो वजाहत आपने लिखनी है 4 लाइनों से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। बहुत ज़्यादा लंबी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, और असाइनमेंट सिर्फ आपने 5 हेडिंग्स लिखनी है, 5 पॉइंट रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम आंसर लिमिट इज़ 2 पेजेस। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको लेके जाते हैं तो 2 सफ़ात से ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो रिक्वायरमेंट्स हैं। खामखा इसको बहुत ज़्यादा लंबे ना लिखें, जितनी जैसे बताई गई है वो आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। एक्सप्लेनेशन के 4 नंबर हैं। द डिवीजन ऑफ मार्क्स इज गिवन बिलो। हेडिंग 1.5 नंबर की है, 1.5 ईयर्स की। अगर आप 5 हेडिंग लिखते हैं तो ये आपके बन जाते हैं 6 नंबर। और अगर आप उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, हर एक्सप्लेनेशन के 2.5 नंबर हैं और इस तरह आपके बाकी नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट्स कुछ चीज़ें हैं वो आप देख लेंगे। ये ना हो कि आपकी फ़ाइल जो है वो कह रहे हैं कि यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शन इन योर ओन वर्ड। इसकी जो वजाहत लिखनी है वो आपने अपने अल्फाजों में लिखनी है। आंसर कॉपीड फ्रॉम एनी सोर्सेज लाइक इंटरनेट, हैंडआउट्स। पूरी की पूरी लाइनें उठा के ना लिखें, आइडिया ले सकते हैं, देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मालूमात लें जहाँ से मर्जी, लेकिन लिखें उसको समझ के अपने लफ्ज़ों में। एक्वायरिंग द रेलिवेंट नॉलेज। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें पढ़ने की हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करके। फॉर्मेट आपने एम एस वर्ड के अंदर 12 रखना है, टाइम न्यू रोमेंस, और एम एस वर्ड फॉर्मेट के अंदर ये फाइल जमा होनी चाहिए। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जी हम इसको एक बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, मोबाइल में अगर आपके एम एस वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो उसको फ़ौरन कर लें और यहाँ पे हम सर्च करते हैं एम एस वर्ड वर्ड। ये फॉर्मेट ये तरीका कार जो मैंने आपको बताया है, आप सभी असाइनमेंट के लिए इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फ़ाइल आ गई है। क्या करना है आपने, IS, मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ISL202 स्प्रिंग। स्पेलिंग का ख्याल कर लीजिएगा। इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने जो आंसर शीट बनानी है उसके अंदर अपनी आईडी लाजमी लिखनी है। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं आपको सपोज करके दे रहा हूँ कि आप इस तरह आईडी अपनी लिखेंगे और इसकी हेडिंग बना लें अच्छी तरह, इस तरह प्रॉपर करके। अगर आप लोगो लगा सकते हैं वीडियो का तब भी ठीक है, अदरवाइज़ इस तरह स्टार्ट करें उसको। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को अगर आप लिखना चाहें तो तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं आंसर से। ठीक है, इस तरह आपने की। और उसके बाद क्या करेंगे कि आपने फर्स्ट हेडिंग देनी है जी। जैसे कि दिया जा सकता है, ठीक है। पहली क्या मैं जो मुझे मेरे जहन में आ रही हो कि आप डोंट
शो ऑफ, ठीक है, दिखावा ना करें। आप इसमें दोनों लिख सकते हैं, इबादत भी, ठीक है, और ये एडिंग को आप नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आप क्या करेंगे कि आप इसकी ना वजाहत कर देंगे, ठीक है। वजाहत के लिए आपने लिखा, कुछ भी लिखें, ठीक है, इस तरह करके आपने लिखना खुद है। मैं यहाँ पे आंसर किसी भी चीज़ का नहीं दूंगा, मैं जस्ट आपको तरीकाकार समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सेकंड जो आपकी है वो लिखें उसको, हेडिंग, ठीक है। एक स्पेस देने के बाद आप 2 कर लें और ये आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिर आपने उसको जो जवाब लिखना है वो लिखेंगे। इस तरह करके आपने फाइल बना लेनी है। 4 4 लाइनें लिखें, उन्होंने भी कहा है कि 4 4 लाइनें लिखें आप जस्ट, ठीक है जी। इस तरह उसके बाद आप नेक्स्ट लिखें, फॉर्मेट बनाएं, ठीक है। 3 कर लेते हैं, उसके बाद जी यहाँ पे फॉर्मेट बन गई। ये आपने आंसर खुद लिखने हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं इस तरह करके। इस तरह टोटल आपने 5 बनानी है हेडिंग्स। आंसर आपने खुद सोचने हैं, चाहे आप उसको इंटरनेट से ढूंढें, बुक से ढूंढें, सोच समझ के, क्योंकि असल मकसद ये होता है कि आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर उसका आंसर भी ढूंढ सकते हैं। और क्वेश्चन सिंपल सा है कि ये 5 तरीके ऐसे बताए हैं कि जिससे आपकी जो इबादत हैं और आपके जो काम हैं, अमाल हैं, उसमें दिखावा ना हो, जस्ट क्या हो, खुलूस हो, और आपको लगे कि भी आप अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह कि आप जो समझ आ गई होगी इस्लामिया 202 की असाइनमेंट। और उसके बाद क्या करना, जब फाइल ये रेडी हो जाए, ठीक है, फाइल हमने फ़र्ज़ करें रेडी कर ली, और इसका जो यहाँ पे देखें कि बिल्कुल नाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स वन है। इस तरह डॉक्यूमेंट्स वन के नाम से आपने फ़ाइल जमा नहीं करानी है। आपने क्या करना है, जब आप इसको आप कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे तो वो आपसे नाम पूछेगा, इस फाइल का नाम क्या रखना है। तो आपने बतानी है उसको लोकेशन, लोकेशन यहाँ पे डेस्कटॉप, और यहाँ पे फाइल का नाम आपकी जो LMS ID है, फ़र्ज़ करें BC 220 इस तरह सपोज करके जो भी है आपने उसको फाइल को सेव रख लेना। यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट्स वन है, हम इसको जैसे सेव करेंगे तो फाइल का नाम चेंज हो गया। अब ये फाइल यहाँ पे कहाँ पे है, डेस्कटॉप के ऊपर। बाकी फाइलें बंद कर देते हैं। तो डेस्कटॉप के ऊपर ये देखें एक फाइल है, ये वाली, ये देखें, इसका क्या है, ID बिल्कुल वही सेम है। तो जब आपने जमा करानी है, इसको सबमिट करवाना है, तो क्या करना है, ये जो एरो का कीज़ है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूछेगा, अच्छा यहाँ पे जो है ना असाइनमेंट एक बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये फाइल जमा नहीं करानी, इसको कहते हैं इनलाइन असाइनमेंट। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इस फाइल को ओपन कर लेना है जो आपने बनाई होगी, बनाई है, इसको सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल C करके कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे वापस अपने LMS में, और यहाँ पे जो ऑलरेडी इन्होंने सबमिट की हुई है, तो यहाँ पे बटन दिए हुए हैं पेस्ट, और अगर आप कंट्रोल V करेंगे या ये बटन प्रेस करेंगे तो इसके अंदर आपकी जो भी फाइल है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सबमिट करने के बाद आपने इसे उसको सबमिट कर देंगे, बटन प्रेस कर देंगे, तो इस तरह ये इनलाइन असाइनमेंट है। इनलाइन का मतलब होता है कि आप फाइल अपलोड नहीं करते, फाइल के अंदर जो टेक्स्ट दिया होता है वो आप उसको कॉपी करके इस बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये सिंपल है। इनलाइन की असाइनमेंट कैसे सॉल्व करनी है, सबमिट कैसे करनी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इस्लामिया 202 की जो बात है ये आपको समझ आ गई होगी। तो मेहनत करें, फोकस करें चीज़ों के ऊपर, और कोशिश करें मैक्सिमम नंबर लेने की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल हमारा है वीयू आइडियाज़, वीयू खानपुर।
تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔